How are you all? I hope everybody is doing well, and by now you guys have watched my previous video where we have discussed the meaning of constitution and why do we need constitution. In this video, we'll be discussing about our Indian constitution. How did we get this visionary document and what are its important features? Okay, so moving ahead, as we all know, India was under the authoritative रूल ऑफ ब्रिटिशर्स. ओके, बहुत सालों से यहाँ ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे. बट लेटर इन द 20th सेंचुरी व्हेन इंडियंस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री इंडियन डेमोक्रेसी, तब इंडिया को रियलाइज हुआ कि एक फ्री इंडियन डेमोक्रेसी कैसी हो सकती है वेयर ऑल आर इक्वल and will be allowed to participate in the formation of government. Therefore, Indians decided to make certain rules regarding it. So steps were taken to form the rule book. So this was not done by only one person, but 300 people were engaged, who were known as the members of Constituent Assembly. तो एक Constituent Assembly बनाई गई CA in 1946 so that they can come and write the various rules which will be known as the Constitution of India. Okay. So they met for next 3 years to write the Constitution of India. तो 3 साल अपने आप हो गए. 1946 में बनाई थी एंड कंटिन्यूसली 3 साल तक वो मिलते रहे टू डिस्कस एंड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो इन 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट. ड्राफ्ट क्या होता है? एक रफली उसका आइडिया भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लगेगा. ओके, now here one question for you guys. You need to answer in the comment section. Who is known as the father of Indian Constitution? I am repeating. Who is known as the father of Indian Constitution? So as we know, the Constituent Assembly consisted of 300 members. Okay, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 300 members. So people from different religion, community, language, culture, etc. came together to form the Constituent Assembly. So that the idea of equality is all clear and from every section people are participating to form the government. Okay, so constitution was written, as you all know. कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है हमारा? 1946. This was the peak where we were about to get our independence. Okay, 1947 में तो we became independent. तो इसी दौरान ये सब चल रहा था. So यहाँ इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रही थी. टर्मोइल मतलब लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि पार्टीशन चल रहा था. कुछ लोग जो चाहते थे दे वांटेड टू स्टे इन इंडिया एज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी. कुछ लोग चाहते थे कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें एंड सम ऑफ अस वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. कुछ लोग हम में से इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे. ये कौन लोग थे? जो प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे. व्हाट आर प्रिंसली स्टेट्स? जहाँ राजा महाराजा का रूल था. ओके, वो वाले राज्य बोल रहे थे ना हमें इंडिया का पार्ट बनना है, ना हमें पाकिस्तान का पार्ट बनना है, हमें अकेले इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना है. ओके, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम प्रूव्ड एज अ विजनरी डॉक्यूमेंट विच रिफ्लेक्टेड. एक विजनरी डॉक्यूमेंट लगा, लॉन्ग टाइम में फ्यूचर में काम आने वाला ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी. भाई डिफरेंट डाइवर्सिटी इज एग्जिस्टिंग इन आवर नेशन, तो उस डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए एंड ऑल्सो प्रिजर्विंग. एट दैट टाइम रिस्पेक्ट तो थी, एक दूसरे को समझ रहे थे, प्लस उनकी नेशनल यूनिटी, हमारी जो नेशनल यूनिटी है उसको भी प्रिजर्व करने की बात कर रहा था ये डॉक्यूमेंट. Plus, it also suggested some social and economic measures to eradicate the problem. So, Constitution एक visionary document लगा जिसके अंदर हमारी हर problem का solution पाया जा सकता था. Okay, now let's get into the key features of our Indian Constitution. Always and always remember, the Indian Constitution was made keeping in mind the diversity, unity, socio-economic reforms, representation of all the people, equality, etc. and so many other things. Okay, so these are something which the makers of the constitution always kept in their mind कि longer period में कोई हमें problem ना हो. उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना संविधान बनाया है. Okay, see the very first feature which is called federalism. What do you understand by federalism?
फेडरलिज्म क्या है? इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भाई एक देश में एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे। लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए मैंने यहाँ ग्राफ बनाया है, फिगर बनाई है ताकि आपको समझ में आए। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आवर ओन नेशन। ओके, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है। कैसे? क्योंकि यहाँ द गवर्नमेंट इज एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट टीयर है हमारा, सबसे ऊपर वाला लेवल, दैट इज द यूनियन लेवल। वहां कौन सी गवर्नमेंट है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम से देखते हैं तो सेंट्रल लेवल पे या यूनियन लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट है? हमारी बीजेपी इज रूलिंग। ओके, सो जो मोदी जी वाली गवर्नमेंट है दैट इज द फर्स्ट टीयर और द यूनियन लेवल और द सेंट्रल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड टीयर। सेकेंड टीयर पे कौन से आते हैं हमारे, या सेकेंड लेवल कौन सा है हमारा? स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे कौन होगी? हमारी राज्य की सरकार, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉम आवर ओन होम स्टेट हरियाणा। हरियाणा में किसकी सरकार है? इट इज अ कोलिजन, दो सरकार मिलकर चला रही है ना, लेकिन मेजोरिटी किसकी है? बीजेपी वाली की। तो अगर हम अपने हरियाणा स्टेट की बात करेंगे दैट विल बी द सेकेंड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट लेवल गवर्नमेंट। ओके, उसके बाद आ जाते हैं हम बिल्कुल ही लोकल लेवल पे। लोकल लेवल पे आएंगे भाई थर्ड टीयर। जब हम अर्बन एरियाज की बात करेंगे तो वहाँ आएंगे म्यूनिसिपैलिटीज, और जब हम रूरल एरियाज की बात करेंगे तो वहाँ आएंगी पंचायत। तो ये जो लोकल लेवल की बात करते हैं, दिस इज द रूट, ग्रास रूट लेवल और द थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, अगर क्वेश्चन आता है नेम द थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द लोकल लेवल। फिर आपको डिवाइड करना है, अगर वो अर्बन है तो वो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज है, अगर रूरल है तो वो हमारी पंचायत है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, ऑल दिस लेवल, ऑन ऑल दिस लेवल देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट मतलब कैटेगरीज, उनका एरिया बिल्कुल डिफाइंड है कि किस एरिया में किसका डिसीजन रहेगा। डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट लिस्ट है, डिफरेंट काम है इनके, और हर काम के लिए डिफरेंट मनी इनको मिलता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, always remember guys that this is very important, listen very carefully, states are not mere agent of central government। ये स्टेटमेंट क्या बोलती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एज अ एजेंट काम करे। एजेंट कौन होगा? अगर जो मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और तुम मेरे एजेंट हो, मैं तुम्हें सही बोलूं गलत बोलूं तुम उसको फॉलो करोगे। इट इज नॉट द केस। ओके, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हर लेवल की अब उनकी पावर्स, उनकी अथॉरिटीज मेंशन की गई है। तो स्टेट्स आल्सो ड्रॉ द अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स नॉट कि वो सेंट्रल के दबाव में ही करेंगे। ओके, पहले टाइम था तो वन पार्टी रूल रहता था, जब हमारी सिर्फ कांग्रेस थी इंडिया में। ओके, तब सेंटर पे भी कांग्रेस है, स्टेट पे भी कांग्रेस है, नीचे भी कांग्रेस है। ओके, तो एक ने ऊपर कमांड की तो सेम रहता था हमारे डिसीजन। लेकिन आफ्टर 1990s हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम आने स्टार्ट हुई। ओके, सेंटर पे कोई और है, स्टेट पे किसी और की गवर्नमेंट है, और लोकल लेवल पे कोई और है। ओके, देयरफॉर इनके बीच में एक हमारी यूनिटी बनी रहे, एक रिस्पेक्ट का दायरा बना रहे। देयरफॉर स्टेट्स आर नॉट द मियर एजेंट्स बट ऑल्सो दे ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ मूविंग अहेड, ऑलवेज रिमेंबर ऑल द पर्सन इन इंडिया, जितने भी पर्सन है इंडिया में, इज गवर्न्ड बाय द लॉज एंड पॉलिसीज। हर लेवल पे अलग अलग लॉज एंड पॉलिसीज हैं जो गवर्न करती हैं हर इंसान को इंडिया के अंदर। मेड बाय ईच ऑफ दिस गवर्नमेंट। विच गवर्नमेंट? यूनियन लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल पे डिफरेंट गवर्नमेंट है, डिफरेंट उनके लॉज एंड पॉलिसीज है जो गवर्न करती हैं। Therefore, it is clear that local level or the state level is not a mere agent of the union government. Next important feature of our Indian Constitution is the parliamentary form of government. Parliamentary form of government क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ लोग खुद अपनी सरकार को चूज करते हैं। Okay, as you have seen during the election days, lot many people lined up. Why do they line up here? To cast their vote in the ballot box. Okay, तो हर एक वोट की अपनी वैल्यू है, ईच वोट काउंट्स। ओके, क्यों ये एक हर वोट की पर पर्सन हर वोट की वैल्यू है? वाई? बिकॉज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है।
एवरीबडी हैज द राइट टू वोट, और एक एक वोट उनके लिए मायने रखता है, ओके, टू विन द इलेक्शन. Therefore, people have direct role in electing their candidates. Also, one more thing, everybody can contest election, no matter उनका social background क्या है, social background क्या है, economic condition कैसी है. Everybody has right to contest election. Next is, this is very important, representatives. Who are the representatives? Are candidates जिनको हम choose करते हैं, are accountable to the people. हमें जवाब देना होगा उन्हें, जिन्होंने उनको चूज किया है. दे आर अकाउंटेबल टू देम. कैंडिडेट्स अगर तुम्हारी सारी चीज़ों को फुलफिल नहीं करते हैं, अगले साल तक इलेक्शन आएंगे, तब क्या तुम उसी कैंडिडेट को वोट करोगे? नो, यू हैव द पावर टू रिमूव दैट कैंडिडेट. Therefore, representatives are accountable to the people. I hope this is clear. This or everything constitute the parliamentary form of government. Okay, parliament क्या है हमारा? We have two houses there, लोकसभा एंड राज्यसभा. वहाँ हम इलेक्शन करके, डायरेक्ट इलेक्शन करके हम लोकसभा में लोगों को इलेक्ट करते हैं, एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हम राज्यसभा में लोगों को नॉमिनेट करते हैं. ओके, therefore leading to the formation of parliamentary form of government in India. There is another question number 2 for you guys. Is India a federal nation? Explain why. Another very important fact is this, the state. जब फेडरलिज्म की बात कर रहे थे, उधर जो मैंने स्टेट का वर्ड यूज किया था वो राज्य की गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारे स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है. ओके, लेकिन जब हम पूरे चैप्टर में बारी बारी स्टेट वर्ड पढ़ते हैं, तो उसके लिए जो स्टेट वर्ड है, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर दी सॉवरेन पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी. बहुत ज्यादा कलेक्टिव लोगों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है. इसका दूसरे सिनोनिम्स क्या है? नेशन और अ कंट्री. कंट्री, नेशन या स्टेट, तो ये ऑल द वे सेम है. ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग, इस स्टेट को फेडरलिज्म वाले स्टेट लेवल से कंफ्यूज नहीं करना है. अगर फेडरलिज्म के अंदर स्टेट दिया है तो वो तुम्हारी स्टेट की गवर्नमेंट है, राज्य की गवर्नमेंट. ओके, लेकिन अगर वो बाकी कहीं चैप्टर में स्टेट लिखा हुआ है, दिस स्टेट वर्ड इज रेफरिंग टू द नेशन और अ कंट्री. ओके गाइज, okay, and the next very important feature of our Indian Constitution is separation of powers. जब मैं separation बोलूँगी तो हम 3 organs of government की बात करेंगे. जब मैं federalism बोलूँगी तो हम 3 level of government की बात करेंगे. Guys, make this concept very clear in your head, okay, and do not confuse yourself. Listen very carefully. जब हम separation of powers की बात करते हैं तो यहाँ आएंगे हमारे government के 3 organs. वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली. जब हम 3 ऑर्गन की बात करते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ओके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी इन तीनों टर्म्स को ब्रीफली, पर अभी ये समझना है कि तीनों ऑर्गन्स के बीच में क्यों हमने अलग अलग पावर्स को डिवाइड किया है. क्योंकि ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया जा सके. नॉट इवन अ सिंगल ऑर्गन इज मिस यूजिंग देयर पावर. ओके, बैलेंस खराब ना हो, कोई भी एक ऑर्गन ज्यादा पावर यूज ना कर ले और दूसरे के पास पावर ना बचे. इस पर्पस के लिए, ताकि मिस यूज ऑफ पावर ना हो, हमने हमारी जो पावर है इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, विच इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, in order to maintain a balance of power. The very first thing is legislature. Okay, so legislature क्या है? It is the elected candidates जिनको हम elect करते हैं. Okay, example MP, MLA, etc. Next is executives. Executives में कौन आते हैं हमारे? जो हमारी जितने भी laws and policies को बनाते हैं और implement करने के लिए helpful होते हैं गवर्नमेंट में. Okay, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज किसका काम है? हमारे एग्जीक्यूटिव्स का. इधर आएंगे हमारे एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. ओके, जो वेरियस एग्जाम क्लियर करके एक सरकारी नौकरी मिली है जिनको, वो वाले ऑफिशियल्स आएंगे हमारे इन दी कैटेगरी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. नेक्स्ट वी हैव जुडिशरी, द थर्ड ऑर्गन. जुडिशरी क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स जहां सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट्स, state courts, etc. are there. Okay, so these are the 3 organs. Now again I am repeating, the aim of the separation of power is, it is to avoid the misuse of power by one organ of the government. Okay,
Now moving to the next important feature of our Indian constitution, it is secularism. This is also very important. जब secularism आता है, word secular या communal आता है, communalism, all these words are related to religion, guys. Okay, always remember. Now state secularism क्या है? When a state or a nation, अभी explain किया था ना state और nation वाला concept, वही same है. When a state or nation which do not officially promote any one religion, ऐसा कोई देश जो कि एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है उनका. अब एग्जाम्पल लेते हैं हमारा इंडिया से. ओके, इंडिया के अंदर हमारा ऑफिशियल रिलीजन है कोई? नो, वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन. हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि हम वी बिलीव इन सेक्युलरिज्म. ओके, सेक्युलरिज्म का मतलब है हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा. यहाँ के लोगों के पास इतनी अथॉरिटी होगी, इतनी फ्रीडम होगी कि अपनी मर्जी से जो मन करे वो फॉलो कर सकते हैं, और जिसको रिलीजन नहीं फॉलो करना तो ना करें. इट्स टोटली वंस चॉइस. ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम दूसरी नेशन का, आवर नेबरिंग कंट्री विच इज़ पाकिस्तान. ओके, पाकिस्तान का जो हमारा ऑफिशियल रिलीजन मैं बोलूँ तो क्या है उधर का? इस्लाम है. ओके, तो इज पाकिस्तान अ सेक्युलर कंट्री? नो. इज इंडिया अ सेक्युलर कंट्री? येस. Why? Because here in India we are free to access or practice or profess any religion. Okay, so all people are free to profess and practice the religion they want. Christian है, हमारे इस्लाम भी है, सिख है, हिंदूज है. We have lot many other religions in our country. Okay, लेकिन तब हम बात करें majority of कौन से religion है हमारे पास? We have Hindus. माइनॉरिटीज किसकी? हमारे इस्लाम की, सिख की, जैन की और बुद्धिज्म. ऑल दीज आर द माइनॉरिटी रिलीजन्स. ओके, देयरफॉर वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कंट्री विच इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इतने तरह तरह के लोग एक साथ आके इकट्ठे रह रहे हैं. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मेन फीचर ऑफ आवर कंट्री विच इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Also, another important point in this secularism is government do not interfere in the matters of religion. सरकार क्योंकि किसी भी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, therefore सरकार के पास ये भी हक नहीं है वो किसी के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करें. रिलीजन कौन सा फॉलो करना है या रिलीजन फॉलो नहीं करना, दिस इज टोटली वंस चॉइस. Nobody can come and enforce you to follow a particular religion. Okay guys, therefore India is a secular country. Okay, now the last and the very important feature of our Indian constitution, it is the fundamental rights. Okay, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में अब बात करेंगे. पहले हम समझते हैं इनको क्या क्या क्यों इतना ज़रूरी समझा जाता है. ओके, वाई फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट. ओके, नंबर वन इज it is referred as the conscience of the constitution. When I say conscience मतलब बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हमारा संविधान हमें बताता है. Therefore, fundamental rights are mentioned as the conscience of the constitution. कम शब्दों में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है regarding our rights, our identity. Okay, therefore it is referred as the conscience of the constitution. Okay guys, next, it protects the citizen from the arbitrary and absolute power of the state. State here means the government, the nation. Okay, so ये हमें इसके अंदर बहुत सारी हमारी राइट्स लिखी गई हैं जो एक इंडिविजुअल हम जैसे इंडिविजुअल उनको एंजॉय कर सकते हैं. कोई भी सरकार या कोई भी स्टेट हमें आके दबाव के अंदर नहीं रख सकती. ओके, नाउ विल स्टडी ऑल दिस राइट्स एंड हाउ वी आर प्रोटेक्टेड by the authority and the absolute power of the state in the coming session. Now, next is it guarantees rights against the state as well as the individual. ये ना सिर्फ हमें राइट देता है ताकि हम अपने आप को सेफगार्ड प्रोवाइड कर सके अगेंस्ट किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट या नेशन, एज वेल एज it also provide us the right so that we can safeguard our interest against any individual also. ओके, नाउ इट ऑल्सो गारंटीज राइट टू माइनॉरिटीज. अभी पढ़ा था हमने सेक्युलरिज्म में कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाली चीज़ें, जो माइनॉरिटी कौन होगी? जो थोड़ी कम पॉपुलेशन में है. मेजोरिटी मतलब जो ज़्यादा पॉपुलेशन में है. तो जो कम पॉपुलेशन है उनको भी गारंटी करता है सम राइट
exclusively for them so that their interests are being protected. Okay, now B.R. Ambedkar, who is known as the father of Indian Constitution, has given the twofold objective of the fundamental rights. Okay, so he says number one is everyone can claim the right. फंडामेंटल राइट एक ऐसी है जो हर कोई क्लेम कर सकता है. सेकेंड इज राइट मस्ट बी बाइंडिंग ऑन अथॉरिटीज, एंड जो राइट जैसे स्पेसिफाई की गई है इट इज बाइंडिंग, उनको मानना ही मानना है अथॉरिटीज को. ये नहीं है दे हैव द पावर टू टेक डिसीजन देयरफॉर वो उस चीज को ना माने. ओके, देयरफॉर राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग ऑन द अथॉरिटीज. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस फंडामेंटल राइट्स वी हैव सेवरल DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल राइट्स तो सिटीजन की राइट के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल की राइट्स के बारे में बात करता है. ओके, DPSP में बात करते हैं कि सरकार की क्या क्या चीजें हैं, सरकार को क्या करनी चाहिए. ओके, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर सिटीजन्स की क्या ड्यूटी बनती है. देयरफॉर इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही बात करेंगे. नाउ लेट्स सी द फंडामेंटल राइट्स इन डेप्थ. ओके, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, वन पॉइंट यू गाइज नीड टू रिमेंबर हर चीज के अंदर, दैट नो सिटीजन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड. कोई भी सिटीजन के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ. इनके बेसिस पे भेदभाव करना इज नॉट अलाउड. ओके, सो मूविंग टू द वेरी फर्स्ट फंडामेंटल राइट, इट इज द राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी का मतलब है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कुछ भी नहीं करता है, या वो कोई PM है. सो ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है, सब बराबर है. ओके, नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम. ये वाली जो कंडीशन है डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, सबके अंदर ही रहेगी. ओके, सो आई विल नॉट बी रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम के अंदर है आपका जो मन करे आप कर सकते हो. ओके, जैसे कि आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीक है, थॉट है, एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, आप कहीं भी जाके किसी भी शहर में रह सकते हो. ऑल दिस कम अंडर द राइट टू फ्रीडम. ओके, नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इसके अंदर आता है कि हम कोई भी 14 ईयर्स से कम या 14 ईयर्स के बच्चों को एक्सप्लॉइट ना करें, उनसे काम ना करवाएं. ओके, चाइल्ड लेबर. ऑल्सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक दूसरे के जैसे पहले होता था स्लेवरी टाइम में, तब बच्चों को बेच देते थे या ह्यूमंस को बेच देते थे, ठीक है ना, और वो जाके स्लेव्स बन जाते. सो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑल्सो बैंड, प्रोहिबिटेड. ओके, सो इट एवरीथिंग regarding the child labor, exploitation, human trafficking etc. comes under the right to against exploitation. Okay, next is right to freedom of religion. ये तो हमने सेक्युलरिज्म में पढ़ा था. हमारे पास right to freedom है, जिस रिलीजन को हम फॉलो करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम कर सकते हैं. और अगर किसी भी रिलीजन को हमें नहीं प्रैक्टिस करना है तो हम वो भी कर सकते हैं. Nobody can come and enforce भाई तुम्हें यही चीज करनी है. ओके, नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. दिस इज बेसिकली फॉर माइनॉरिटीज. जितनी भी माइनॉरिटीज हैं जो कम पॉपुलेशन में है हमारी कंट्री में, उन लोगों के लिए है ये, ठीक है, ताकि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह सेटअप कर सके और अपनी जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उन सब चीज़ों को प्रिजर्व कर सके. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में ही हमें हमारे सॉल्यूशन मिलता है अगर कोई स्टेट हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करेगी. ओके, इफ द सिटीजन ऑफ आवर नेशन आर अनएबल टू एंजॉय दिस फंडामेंटल राइट्स, द सॉल्यूशन इज गिवन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. चाहे वो कोई स्टेट है, गवर्नमेंट है या कोई इंडिविजुअल है, every solution regarding it is presented in the constitutional remedy. Therefore, B.R. Ambedkar ji said constitutional remedy is the heart and soul of the Indian Constitution. Okay guys, that's it for this chapter and we are done with this chapter. Now you guys quickly go and comment down all the answers in the comment section that I have asked in the video. Also guys, do not forget to like, share and subscribe. नीचे जो like का जो thumbs up वाला बटन है उसको भी प्रेस कर देना और मेरे नेम के आगे जो subscribe का बटन आ रहा है guys, go and press that. Okay, thank you so much.